आपले असोसिएट डीन ऑफ ह्युमॅनिटीज, नितीन पाटील सर IT मॅनेजर आणि मूडलचे सर्वस्व, other teachers if they have joined this training session, and all my dear student friends. It's a very lovely morning today and I must tell you सर that माझ्याकडून होत नाही रेकॉर्ड. मी केलंय राहू द्या. ओके सर. मॅम मराठीतनं बोलाल का? हो, मराठीतनं बोलते, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके मॅम, थँक्यू. No, ma'am. We don't understand any language except English. So let us go with Hindi. It will be better. No, we don't understand any language except English because we are foreigners. Okay, so what we will try to do is we'll try to see how can we mix the languages. So whenever there is some technical aspect, I will try to cover in all three languages majorly, and maybe let us hear from Supriya madam in whatever the language that she prefers in. Okay, thank Yes, you. madam. Yeah. Okay, considering your requests, I'm going to speak in a mixed kind of a language. And therefore, to begin with, let me speak in English. Thank you very much for inviting me to talk to all the students, Patil sir. And as usual, Patil sir, you are very active. You are taking care of all the departments where Moodle is concerned. And this is a wonderful exercise. Students, perhaps you are facing exams on Moodles for the first time. Is that right? And if that is right, then you are in perfect hands where our Dr. Patil sir will be taking care of you and walking through this session. आपल्या सर्वांना जे Moodle वापरायचं आहे, Moodle हे एक अतिशय सुंदर प्लॅटफॉर्म आहे. याच्यावर परीक्षा देणं व परीक्षा घेणं हे अत्यंत सोपं आणि सरळ आहे. त्यामुळे आम्ही ॲट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आणि ॲट द डिपार्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेस, in both the departments, we have successfully used Moodles as a mode for one, teaching the students, and secondly, for conducting exams. And believe me, it's a small thing that you have to learn, a few things you have to follow, and once you follow the instructions given, it's a wonderful session. So without taking too much of your time, I'm going to hand over the session back to Patil sir because he's going to give you all the important inputs. Just one more thing I'd like to say is, if you have friends, जर तुम्हाला बाकीच्या विभागामध्ये मित्रमैत्रिणी असतील, तुमचे ओळखीचे असतील, तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांच्याकडनं पण समजून घ्या, कारण ह्या बऱ्याच मुलांनी Moodleवर परीक्षा दिलेली आहे, तुमच्या सिनियर्सनी पण दिलेली आहे आणि हा अत्यंत सुंदर असा हा प्लॅटफॉर्म आहे आपला. Okay, so thank you very much for inviting me, Patil sir. With this brief initiation, let's hand it over to you. Thank you. Thank you very much, madam. So, hello, dear students, once again. So, I'm going to speak in Hindi as well as English together, considering different set of students over here from 3 to 4 departments. So, okay. This semester, I will start first some few lines in English, and then I will go with Hindi, and then we will use mixed form. So this semester we'll be having a new platform, and some of you, I assume English and communication studies students or even the department are conducting exams first time on Moodle. Okay, mainly English, I know that. This would be great experience for you all. Whatever your next semester would be, with assumption your 4th semester, all sessions, everything, if at all you don't come to the campus, all sessions would be conducted on Moodle only. तुमचे जे काही सेशन्स होतील पुढच्या सेमिस्टरला हे सगळे Moodle वरती कव्हर अप होतील. नाउ व्हेन वी डू टॉक अबाउट Moodle को जब हमें समझना है, सो Moodle विल परमिट यू, Moodle आपको परमिट करेगा असाइनमेंट सबमिशंस के लिए. टीचर आपका असाइनमेंट डालेगा, टीचर विल सबमिट ऑल असाइनमेंट्स, फाइन. देन देयर वुड बी टाइम फ्रेम गिवन. तुम्हाला काहीतरी एक यू विल बी गिवन सम टाइम फ्रेम, तो तुम्हें कुछ थोड़ा, आप लोगों को कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आपको उस टाइम में सबमिट करना होता है जो आपका असाइनमेंट होगा. ठीक है, वहां पर लेक्चर नोट्स भी रहेंगे. सो टीचर्स विल ऐड देयर लेक्चर नोट्स टू इन द Moodle course platform. So let me show you how you go about this. So
you must have been given usernames and passwords for this, so I will explain that part as well. आपके टीचर्स ने आपके पास शायद आप लोगों को आपके यूजर नेम पासवर्ड शेयर किए होंगे, सो आप लोगों को वही यूजर नेम और पासवर्ड यूज करने हैं. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? वन कैन अनम्यूट एंड लेट मी नो. Yes, sir. ओके. Yes, तो आप sir. एक लिंक, हाँ, आप एक कागज पेन साथ में रखो. यू हैव टू कीप पेन एंड पेपर विद यू, सो Yes. टू नोट डाउन फ्यू थिंग्स. फाइन. So mute yourself. Rest of you, I request all of you to mute yourself so that like everybody will be able to listen what I'm trying to tell. Even my suggestion would be try to like mute your video too. Fine. Okay. So the link that we are going to follow for your examination, you can note this down. I will put that link even into our chat window, so you can copy from it. तो चैट विंडो में मैं एक डाल रहा हूँ वहां पर चैट विंडो में कि जो रहेगा आपको लिंक जो फॉलो करना है आप लोगों को. तो इस लिंक पर आपका एग्जाम लिया जाएगा. आई विल रीड इट. https://moodle.sppulms.in. सो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को आपका यूजर नेम यूज करना है. नाउ इफ आई सी your usernames are either starting with R or either starting with N, with assumption that you have been admitted in year 18 or 19. आपका एडमिशन अगर 18 या 19 में हुआ होगा तो आपको एक टिकटिंग सिस्टम थ्रू एक कोड जनरेट किया गया था which was your ID card number even like N या R वाला होगा. ठीक है. तो you have to make use of that particular user ID and you are given a password which you have to use. Fine. So you give your username like this. You give your password, like this is your username, so you type in your password, key in your password and then you log in. Now you will see आप लोगों को लॉग इन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो ज्वाइन किया कोर्सेज को आपको रजिस्टर किया गया, वो सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे वहां पर. सो अभी एक मेरे पास कोर्स है इस बच्चे के लिए. एक ये स्टूडेंट का लॉगिन है. ये स्टूडेंट को रजिस्टर किया गया है 2 कोर्सेज के लिए. So the student has been registered for these 2 courses. So say this is the course that I want to work with. So let me go first. Like after you log in, you will get this kind of thing. Correct. Towards right corner, you will see this arrow. So it will show you your timeline. Whatever the task, आप लोगों को जो भी task दिए गए वो सारे यहाँ पर दिखेंगे. Whatever the tasks that are given to you would be shown here, and there will be deadline. Like where are you exactly with respect to those courses, those assignments, internal examination, and so on. आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, आपका असाइनमेंट होगा, तो वो सारा यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखेगा. यहाँ पर आप देख सकते हो असाइनमेंट 1 आपका ड्यू है. असाइनमेंट 1 इज ड्यू. इंटरनल एग्जामिनेशन वुड बी क्लोजिंग एट 11:30. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन वुड बी क्लोजिंग एट 11:45. सो लेट अस गो टू आवर कोर्स. सो इस साइड में लाइक दिस साइड यू विल सी फ्यू मेनू ऑप्शंस. सो दिस वुड बी योर डैशबोर्ड. सो क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड. So you would be able to see different courses, so which you are registered to. Fine. So we already registered you all for your respective courses. Either they were fresh or backlog. आपके जो fresh courses है या आपके backlog courses है सारे इस dashboard में दिखने चाहिए. Fine. So if you are not able to see them, आपको अगर नहीं दिख रहे तो you have to contact your exam coordinator of the department. So that वो आपको register कर लेंगे. They will register you. Fine. So let me go to this course. Say this is the course that we want to see. So this course contains few things for me. Like for example, this is one session 1. So these are lecture notes. Apart from it, there is internal examination, there is external examination. So let me go to this session 1. So these are kind of lecture notes given by my teacher. Okay. आपके टीचर ने आपको दिए हुए लेक्चर नोट शायद यहाँ पर हो सकते हैं. They can be in PDF form, PPT form, PowerPoint presentation हो सकता है. It could be docx as well. That could be docx, that could be PDF, that could be PPT. Anything possibly could be there. Even like if I see here, it could be even a video. So if I click on this, say for example, it will open a video where it will start playing the video. So I assume like you will be able to listen what exactly happened here. Correct. Now this kind of lecture video also might be added by your teacher over there. Fine. So whenever suppose you are done with this, आपका अगर ये देख
हो चुका है, मतलब you gone through this particular file, you understood lecture notes, and when you are done, you can simply mark this, correct, like this, fine. So when I do this, suppose if I go to dashboard, अगर मैं dashboard पर जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो अगर मैं dashboard पर देखता हूँ मेरा परसेंटेज पैटर्न कितना कंप्लीट हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा. So you will be able to see that I have completed these many activities. So there were some activities which are divided in terms of percentage. So I can track whole performance of mine in the course, correct. आप लोग देख सकते हो आपके कितने एक्टिविटीज कंप्लीट हुए, कितने कंप्लीट हुए नहीं है, काइंड ऑफ, फाइन. So let us go back. So if I say I have seen this video, I will mark it. I have seen this. Now let me go to assignment. ये आपका assignment है. So this was an assignment given to you by your teacher. So what it says, this is a demo assignment. I have added this. Submit your written answers in JPEG format. Suppose आप what you are told, आपको क्या बताया गया है कि आप जो भी आंसर लिखोगे वो आपको लिखना है, उसका फोटो निकालना है और उस फोटो को आपको अपलोड करना है. सो वहां पर स्पेसिफिकली बताया गया जेपीग में. सो यू आर आस्क्ड लाइक व्हाट आर द आंसर दैट यू आर गोइंग टू राइट. इट शुड बी रिटन ऑन अ पेपर, टेक फोटो ऑफ इट एंड यू हैव टू सबमिट दिस. नाउ लाइक इट सेज आई हैव टू सबमिट विद इन दिस टाइम, फाइन. सो लेट मी ऐड माय सबमिशन. मुझे अभी अब मेरा सबमिशन ऐड करना है. वहां पर ये बोल रहा है कि मेरा ओवरड्यू हो चुका है जो ऐड किया था उस हिसाब से. So मैं यहाँ पर अभी असाइनमेंट सबमिट करता हूँ. So you will get this kind of UI where you have to submit your assignment. आपका असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको ऐसे UI आएगा. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए. You have to click this add. Fine. So let us say I have to add my files. So I will click on this upload file. आपको इस upload file को क्लिक करना है. बाद में click on this choose file. यहाँ पे क्लिक कीजिए और हम नीचे जाते हैं. अभी मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ पर. So say this is my written answer. Fine. तो ये मेरा लिखा हुआ आंसर है जो जेपेग फॉर्मेट में है. सो आई विल ऐड इट. मैं उसको ऐड करता हूँ. यहाँ पर बोलता हूँ मैं अपलोड फाइल. अपलोड करने के बाद मुझे कहना है सेव चेंजेस. आई विल क्लिक ऑन दिस सेव चेंजेस आफ्टर अपलोडिंग. सो व्हेन आई सेव इट, इट विल शो मी दैट माय असाइनमेंट वाज सबमिटेड. सपोज आई वांट टू रिमूव दिस, आई कैन रिमूव. आपको अगर असाइनमेंट ये सबमिशन रिमूव करना है, गलती से कुछ हो गया तो यू कैन रिमूव. अदरवाइज यू कैन एडिट. आप एडिट भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो. तो हमने अभी ये सबमिट कर दिया है, ठीक है. सो नेक्स्ट आई विल शो यू ऑल थिंग्स लेटर. ओके, लेट मी शो फर्स्ट फ्यू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन पर्सपेक्टिव. फाइन. आप लोगों को मैं अभी जो दिखा रहा हूँ इसमें असाइनमेंट रहेगा, इसमें आपका इंटरनल एग्जाम रहेगा, इसमें आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रहेगा. तो सपोज इंटरनल एग्जामिनेशन को मैं क्लिक करता हूँ. सपोज आई क्लिक ऑन दिस. मैं इंटरनल एग्जामिनेशन को क्लिक करता हूँ. वहां पर मुझे टाइम रहेगा. वहां पर अटेम्प्ट्स कितने हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड. अटेम्प्ट्स अलाउड आर 1. Exam will start at 11:15 and will end at 11:30. तो आपका your exam will be available between these 15 minutes. यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा 15 मिनट्स के लिए अवेलेबल. बट यू विल बी गेटिंग ओनली 10 मिनट्स टू सबमिट योर आंसर. आपको सबमिट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स है आंसर सबमिट करने के लिए, ठीक है. सो लेट अस क्लिक दिस अटेम्प्ट क्विज नाउ. सो लेट मी गो विद दिस. So there is a question added in say Marathi. So I am given this question. So let me click on this. Say for example, I will move to next page. Now you will see here how much time is left. आपका कितना टाइम बचा हुआ है यहाँ पर दिखेगा. आपको कितने क्वेश्चन है उस पेपर में यहाँ पे दिखेंगे. You will be shown how many questions are there. Along with it, you will be told like this much amount of time is left to submit. Fine. So आपको suppose ये this was a question given to you. आपको एक क्वेश्चन था, उसका आपने एक आंसर सिलेक्ट किया and you are going to next. Now आप जब next question को जाते हो तो यहाँ पे black window आया. So when you go to next question, it shows some black part here. That means what? Your answer is saved. इसका मतलब होता है कि आपका आंसर सेव हो गया है. वहां पर आप देख सकते हो, correct. Now I am getting second question. Suppose I don't want to attempt this, I will go to third. I can click there directly third. So this was third. I don't want to answer that. This was fourth. So for example, let me click this. It is in English now. So say I'm going to fifth. So this was again fifth. I will go with this. I will move to next question. I will click this. I will go to next question. So now here this is something different. So this was a question given to me which contains an image. इस question में एक image है. उस इमेज को देख के आपको आंसर करना है. सो इट इज आस्किंग मी ओके लाइक यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन.
तो यहाँ से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है वो इमेज को देख के, तो आई विल चूज दिस, आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल सबमिट। से फॉर एग्जांपल वो सबमिट करता हूँ। फाइन, देन दिस इज माय 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है जैसे ये दिया हुआ है, वहां पर यू हैव 5 थिंग्स एंड इट इज आस्किंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग, व्हिच ऑफ दीज आर देयर, सो यू कैन चूज वन ऑफ देम। आपको पूछा गया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ये 5 ऑप्शंस है, इस 5 में से कौन से 3 करेक्ट है। सो सपोज आई चूज दिस, मैं अगर ये चूज करता हूँ, सो आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन यू कैन कीप ट्रैक ऑन द टाइम। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। फाइन, सो लाइक व्हेन आई क्लिक दिस इट विल शो मी सम लिस्ट, सो आई कैन चूज appropriately the option. Fine, so for example an independent path, I will choose randomly. Fine, say these are my answers. Suppose these are the answers given by me. Now let me go to 10th question. Now this there might be a question. आपको एक question ऐसे हो सकता है कि एक question दिया गया है आपको, you are given the question like this and you are asked to type in there. You have to type your answers here. Suppose this is one type of submission. आप like you are typing like this, so your answer is written like this. आपका आंसर सपोज ऐसे टाइप किया हुआ है। फाइन, अगर आपका मराठी में होगा या कोई लोकल लैंग्वेज में होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, so if it is in Indian context, so you have to take help of Google typing tools. Maybe your teachers can help you on that front. Fine, आपके टीचर्स आपको हेल्प करेंगे टू टाइप इनटू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, आपके पर्टिकुलर लैंग्वेज में टाइप करने के लिए, या वो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है उस तरीके। फाइन, सो आई एम टाइपिंग माय आंसर्स, आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर। फाइन, मैं सवाल जवाब बाद में लेंगे हम। फाइन, लेट मी गो टू नाउ 11th क्वेश्चन। नाउ दिस 11th क्वेश्चन requires me to say answer again here. So let me type my answers here. Okay. Let me go to my 12th question. This is again a 12th question where I am expected to type in here. Suppose I typed in and then now I don't want to attempt this second and third. Fine. And I want to submit my assignment. So you have to click this finish attempt. Fine. Now after you click finish attempt, it will show you which answers saved, which answers are not saved. Because I haven't answered question number 2 and 3. मैंने 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, तो इट सेज, वो यहाँ पे बोलेगा योर आंसर इज नॉट सेव्ड और योर आंसर इज नॉट आंसर्ड, नॉट एट आंसर्ड काइंड ऑफ थिंग। आपने सबमिट उसको ये नहीं किया। सपोज यू वांट टू गो बैक टू योर अटेम्प्ट, आपको अगर आपके अटेम्प्ट को वापस जाना है तो इसको क्लिक करो फिर से। यू कैन क्लिक ऑन दैट रिटर्न अटेम्प्ट, यू कैन सी द सेम क्वेश्चंस अगेन। नाउ सपोज आई थॉट, मुझे लगा कि आई शुड आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो सपोज आई चूज दिस ऑप्शन, मैं अगर ये चूज करता हूँ, देन आई सेड let me not answer third question, I will go fine. Now you say submit and finish. Everyone, आप सबको ये submit all and finish करना है. You have to click on this submit all and finish. So when you submit this, as this quiz contains only one option, now you will see like I am shown my attempt. Fine. Now this exam is available till what? So it shows me, वो मुझे दिखाएगा मैंने कितने बजे शुरू किया, मैंने कितने बजे खत्म किया। So it showed me what time I started, what time I ended, and how much time I took. आपने कितना टाइम लिया है आंसर करने के लिए, यहाँ पर दिखेगा। Fine. So it will show you this. Now let the time end. Like for the exam, if you recall, for this exam, इस एग्जाम को खत्म होने के लिए 11:30 तक का टाइम था, तो इसके बाद ही हमें वो मार्क्स दिखेंगे यहाँ पर। But till that time, for internals at least, you can see what are the answers written by you. Say for example, third question I haven't answered, correct? But it is saved because it is saved as I haven't answered. आपने उसको आंसर नहीं किया है, तो you can see this here. आप उसको एडिट नहीं कर सकते अभी, उसको ऑप्शन चूज नहीं, you cannot choose this option now. Now इस क्वेश्चन के लिए आपने ये ऑप्शन चूज किया था, वहां पे वो दिखा रहा है, because for this question we have chosen this option, so it is showing us that part. Fine. तो इस तरीके से ये अपना आप इंटरनल एग्जाम दोगे। यू विल अटेम्प्ट योर एग्जाम राइट नाउ इफ इट एट ऑल इट इज इंटरनल एग्जाम। फाइन, सो एट 11:30 it will show me proper marks. Fine, so let us wait for
to 4 minutes. By that time, उस जब तक 11:30 होता नहीं तब तक हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं 2 मिनट के लिए. So if you have any questions, आपको अगर कोई सवाल है, you can ask me. Unmute yourself one by one, fine, or raise your hand. I will unmute you and then you can ask me the question. किसी को क्वेश्चन है? Anybody want to ask a question? कुछ क्वेरी है आप लोगों को? सर हाँ, सर एक्सटर्नल एक्झामिनेशनला पण सेम पॅटर्न आहे हा. बघूया आपण पाहूया ना. सर Okay. हा. सर रिअल टाइम मध्ये चाललंय सगळं, सो मीन वाईल जर नेटवर्क इश्यू वगैरे असेल आणि लॅग वगैरे झालं तर. So what she is asking is, like, suppose there is a network issue while my exam is going on, correct? So that care would be taken here. Like, say for example, आप लोग का टेस्ट अवेलेबल है 1 बजे से 2 बजे तक. If your test is available between 1 to 2, fine, and you are given 45 minutes, correct? आपको 45 मिनट्स दिए गए. Suppose आपका इंटरनेट जाता है. So if your internet is not working or there is some speed in terms of slow aspect, like speed goes down. So in that situation, इस situation में आपको क्या करना है? So you have to contact your exam coordinator and let him know about the same. Like we conducted final year examination of Marathi in month of October, and like I know, say for example, computer science as well. In commerce management, we all had examination on this platform. So when we conducted it, like we could see only 3-4 students from every batch. This 3-4 even is big number. It should not be a problem for you people. So my suggestion would be, आप लोगों को ये input रहेगा. You do what? Wherever you are getting good range, आपको जहाँ पे भी अच्छा रेंज आएगा वहां पर रहिए. You should have your laptop, mobiles, everything charged. Okay. So like if your mobile is having problem of battery, आपके मोबाइल को अगर बैटरी की प्रॉब्लम है तो you try to get a mobile which will help you out if you are opting that exam from mobile. Fine. आप अगर मोबाइल यूज करना चाहते हो तो मोबाइल फुल्ली चार्ज होना चाहिए. Your laptop, desktop, everything. Like if power is not there, then you can communicate. If there is some natural issue, say for example there is a rain and due to rain, बारिश की वजह से आपके यहाँ पर पावर नहीं आया किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से, so you can communicate your exam coordinator. They will take care of that part. आपके एग्जाम कोऑर्डिनेटर उसका केयर करेंगे. Don't worry. Fine. Sir, I had a doubt. Wanted to ask if the exam was proctored or not, or do you need to buy webcams and such? See, if you are opting, if you are using mobile, so if it is proctored, then like it will definitely capture this. Correct. Okay. So like you can talk with your teachers on that aspect, like whether it would be proctored or not. So let me not address that issue because it is individual department's issue. ये particular department का issue उनको proctor करना है कि नहीं करना है. Correct. Okay. Right now, I should not comment on that. Okay. Fine. Yeah, Sanket, you raised hand. Please unmute yourself and ask the question. Sir, can Sir, we upload? Hello. हा संकेत. सर आपण हे सगळं मॉडेल ऍप वर पण करू शकतो की ब्राउझरवरच करावं लागेल? Okay. Now see, like this student is asking, can we use this on a mobile app or we should use a browser? Fine. I will give answer to both the this question in both the languages. So I will first address in Hindi. अगर आपका एग्जाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ होगा तो आपको शायद आंसर वहां पे टाइप करना पड़े द वे दैट आई टाइप देयर. करेक्ट. मैंने जैसे टाइप किया वैसे. अगर आपको फाइल सबमिट करना होगा तो वो कैसे होगा वो भी मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद. फाइन. तो उस केस में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा. द डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट कि लाइक कितना टाइम होना चाहिए. वो डिस्क्रिप्टिव होगा या एमसीक्यू काइंड ऑफ होगा तो आपको आपके डिपार्टमेंट में बात करनी चाहिए. आपके डिपार्टमेंट के एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स आपको बताएंगे. ठीक है. सो इट कुड बी मिक्स्ड इवन. फाइन. So the thing is, like what I tried telling is, if this exam is of MCQ, fine, then you will be able to answer that through a mobile app or through say for example browser. अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, so my suggestion would be, मेरा सजेशन ये रहेगा, if डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वहां पर है, don't use mobile app, instead use browser.
आपको मोबाइल ऐप यूज करना नहीं है अगर वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है. आई नो दैट इंग्लिश डिपार्टमेंट वुड बी कंडक्टिंग देयर एग्जाम्स विद डिस्क्रिप्टिव पैटर्न. Also communication studies may have their exams with descriptive pattern. So मेरा सजेशन ये रहेगा कम्युनिकेशन स्टडीज या इंग्लिश के लिए, अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू नहीं है, सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ऐप. आपको ऐप यूज नहीं करना है बिकॉज ऐप विल नॉट प्रोवाइड यू दैट फंक्शनलिटी टू अटैच फाइल. आपको ऐप ये फंक्शनलिटी देगा नहीं शायद आपको आंसर अटैच करने के लिए, तो आपको यूज करना है ब्राउजर. यू कैन यूज एनी ब्राउजर ऑन योर मोबाइल, फाइन, टू वर्क विद दिस. ठीक है संकेत? ओके सर. आणि या हॅलो सर. हाँ सर आम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह एक्झाम आहे, मग आम्हाला तिथे टाईप करावं लागेल का आम्ही स्कॅन कॉपी अपलोड करू like शकतो? that would be that would be communicated to you by your teachers. ओके सर. Okay, you talk with please your teachers because I'm only providing this platform to you. मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए. करेक्ट. ओके सर. The teachers would be creating their own test. टीचर आपके एग्जाम तैयार करेंगे, वो आप पर डालेंगे. ठीक है? ओके सर. थँक्यू. ठीक है? Okay. Yeah. So we'll stop for a while in respect of question. Sir, please wait. We will talk about question and answers later. Let us go to that internal examination because 11:30 is there. So if you see now, if I go there, okay. So it should end at 11:30. So let us refresh this. So let us go to this review. Now you may see like when the time is over, it lets me know which answers are correct, which answers are wrong. So whatever are marked with this red kind of thing, it tells me that they are incorrect. Fine. And if you see these are the green and tick mark are correct one. So this is partially correct. Like if you see this kind of thing. So let us, if we go below, say for example, it lets me know what the correct answer is. Suppose this particular question was, it lets me know what the correct answer is. Fine. Now if we go to this one type of question, so I gave multiple answers there, correct? Among them only 2 of them were correct. And if my question is divided like having 1 mark, the number of options given over here like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that means what, 0.1 mark हर इसके लिए 0.1 mark रिजर्व किया था for one answer. In this 10 answers 0.1 mark was given. So I attempted correctly 2. मैंने इन दोनों को करेक्टली दिया, तो I can see that 0.2 was given to me. Fine. So अब नीचे जाते हैं. So these are the question. अगर ये descriptive है, suppose ये descriptive, this is a descriptive question which I answered. This is to be evaluated, and that's why it says you don't have any information here with respect to marks. Fine. So this would be for internal examination only. So I will show you from teacher side as well how it works. Fine. So let me go back to now this grade part. So in grade part, you will see your marks. Fine. What marks are given for your assignment? What marks are given for your internal examination? So as मेरा assignment अभी evaluate नहीं हुआ है, my assignment was not evaluated. My internal examination partially evaluated. Rest of the questions were not evaluated. बाकी question evaluate हुए नहीं है. सिर्फ 7 questions evaluate हुए automatically. MCQ था तो descriptive के लिए वो manually करना पड़ेगा evaluate. That would be done by the teacher. Teacher will evaluate your descriptive questions manually. Fine. So let us go to the final examination that I created there. Hopefully that would be available. Otherwise I will change. Yeah. So that time is 11:30. Yes. Please mute yourself. Okay. Now this is an external examination. Now I'm assuming that I'm adding here, like you know now how to attempt MCQ. आपको ये पता चल गया कि MCQ को कैसे attempt करना है, correct? Now let me try to see few other question types here. So I added a few other question types. So I have to make probably some changes in the exam. So it is having some problems. So let us go to our teacher login. मैं टीचर के लॉगिन को जाता हूँ, वहां पर उस एग्जाम को चेंज करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं. So I am going to my teacher login now. So my teacher login is available with me. So I am logging in with teacher login. So this is my teacher login. Now you may see, आप लोगों को ये दिखेगा, ये डेमो कोर्स था हमने क्रिएट किया हुआ. फाइन. उसमें अगर मैं इंटरनल एग्जामिनेशन को जाता हूँ, सो दिस वुड बी माय यूआई. ये टीचर का यूजर इंटरफेस रहेगा, तो उसको यहाँ से ऐसे दिखेगा. He will be able to, the teacher will be able to see like this. So this would be attempt 1. So it will let me know like this particular student answer, इस student ने answer किए थे कुछ questions, correct? And those descriptive questions which were there, these 3,
were not evaluated. That's what it says requires grading. ये जो 3 थे उनको ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन नहीं हुआ था तो वो डिवाइड किया गया एंड इट इज आस्किंग मी, वो मुझे बोल रहा है कि इसको ग्रेड करना है. सो लेट मी क्लिक ऑन दिस require grading. So it shows me what you wrote there. So this was the question and these are the answers. Fine. Now if I have to evaluate, so I evaluate it say for example by clicking this, I give say mark say 0.3. Fine. Now when I'm done, okay, when I'm done, when I click this close window and if I refresh this, then you will see that this requires grading would be removed by now or replaced by now 0.3 or whatever the kind of, because it is divided into a number of marks, so it got converted because we had some exam with more than 12, it was for 12 marks, and exam we are getting for 10 marks, so automatically my marks are divided. Fine. So if I go here, if I try to again evaluate this answer, so suppose this answer was wrong, so I will give 0 mark. Let me go to close and let me click on this require grading again. Again, I will give 0 mark to this question. Fine. Now let me go back to this. Now if I say, now it says not yet graded and 2 things are there, so let me refresh this. Now you will see that I got these many marks out of this. So if I go back to student now again, मैं अगर टीचर के लॉगिन में से निकल के स्टूडेंट के लॉगिन में जा रहा हूँ, so I will be able to see now, मुझे ये दिखेगा कि जो मेरा इवैल्यूएशन हो चुका है उसके मुझे मार्क्स कितने आए. So I will be able to see now my marks. So if I click on this, it tells me out of 12 I got 3.5. जो ओरिजिनल टेस्ट था वो out of 12 था, उसमें मुझे मिले 3.5. Now this test was converted to, it was scaled to 10, वो scale हुआ 10 पर. So out of 12 इतने थे 3.5, so how many would be there for out of 10? So it shows me this. So it says it actually scaled 3.5 marks which were out of 12 to 2.90. Right? So this is how my internal evaluation will be available. Now you must have seen like these marks are shown to you. Now for your external examination it will not be shown. Fine. So let us attempt this external examination. Okay, but we have to make changes there because there is some problem with the exam. So let me go back to my teacher login. So I will edit that test. Let me see what the problem is. Let me delete this so that I will create quiz one more time. So I'm saying add random question. So say it is added. Marks. We will take all 7 so that you will be able to see now. It would be better if I add all 10, all 7. So add a random question. So we'll take 7. सर पूर्णच इंग्लिश मधून नका ना सांगू, थोडंसं नाही नाही, मराठी सांगतो मी सांगणार 2 मिनिटं थांबा. काहीच कळत So नाही I'm adding. सर, इंग्लिश मधून तर मला तर काहीच कळत नाही. ठीक है. ओके, सो आई एम एडिंग 7 क्वेश्चंस. मैं 7 क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं यहाँ पर. ठीक है. सो आई हैव एडेड 7 क्वेश्चंस. तो ये टीचर का लॉगिन है, आपको वरी नहीं करना है इसके बारे में. सो लेट मी गो टू स्टूडेंट लॉगिन. मैं स्टूडेंट के लॉगिन से जा रहा हूं अभी. ठीक है. तो जो टेस्ट ऐड किया था मेरे लिए
उस टेस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ. सो आई एम ऑप्टिंग दैट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थिंग. फाइन. सो वहां पर टाइम दिया गया है 11:30 to 11:45. सो आई गॉट टाइम फ्रॉम 11:30 to 11:45. मैं एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करता हूँ. ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट अटेम्प्ट किया गया. तो सेम थिंग यू विल सी. आपको जो दिखा था वही दिखेगा जैसे पहले था. फाइन. सो यू कैन क्लिक ऑन आइदर ऑफ द क्वेश्चन. आप किसी भी क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो. अब ये जो क्वेश्चंस है पहले दो, लेट अस टेक थर्ड वन. ये तीसरा वाला भी देखते हैं. इसको मुझे टाइप करना है वहां पर. ये चौथा वाला भी जो है हियर. ओके. फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस which are there, I have to type in my answer there. This is, so I will answer here. This is a demo. मैंने यहाँ पर ऐसे टाइप किया मेरा आंसर. मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ. ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है. मुझे यहाँ पर ही आंसर करना है. आपको कैसे दिखेगा वो, यहाँ पर आंसर करना है कि नहीं करना है. यहाँ से आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो, when you scroll down, you will see that only text window is there. ये ऐसे टेक्स्ट विंडो दिखेगा आपको. इसका मतलब आपको आपका आंसर वहां पे ही टाइप करना है. तो योर एग्जाम कोऑर्डिनेटर और योर टीचर्स विल लेट यू नो. आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि वहां पर आपको लिखना है कि आपको पेपर पर लिख के ऐड करना है. वेदर यू हैव टू राइट ऑन पेपर एंड यू हैव टू ऐड इट देयर और नॉट. सो ये आपको सारा बताया जाएगा आपके टीचर्स द्वारा. सो दिस इज, ये मेरा अनदर आंसर है. ठीक है, अनदर क्वेश्चन के लिए. सो आई एम आंसरिंग थर्ड क्वेश्चन. मैं तीसरे क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ. So now let me go to fourth. मैं चौथे क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ. So if I see, मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे एक मुझे फाइल ऑप्शन दिया हुआ है. So I am given this option where I have to submit. So let us assume that, हमें assume करना है कि हमें पेपर पर लिख के वो फोटो निकालना है. तो what you have to do is, you have to take a photo of whatever you have written. आपने जो लिखा हुआ है उसका आपको फोटो निकालना है. उस फोटो को आपको अटैच करना है. कैसे करेंगे? You have to click on this. You have to attach your file. So click on this ad. आपको इस ad को क्लिक करना है. जैसे हमने असाइनमेंट के लिए किया था, the way that we did for assignment, same thing आपको यहाँ पे करना है. वैसे ही करना है. यहाँ पर ये चूज फाइल को चूज कीजिए. ठीक है. अभी हम जाते हैं इमेज को. So we will go to, say for example, image. So let us say this is written by me. Okay. So ये मैंने लिखा हुआ था, उसका मैं आंसर सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पर. So आफ्टर आई चूज अ फाइल, मेरा फाइल चूज होने के बाद यहाँ पर बोल दीजिए अपलोड फाइल. यू से ओनली अपलोड फाइल. व्हाट इट विल डू इज, वो क्या करेगा, आपने जो लिखा हुआ था पेपर पर उसका फोटो यहाँ पे ऐड होगा. व्हाट एवर यू हैव रिटन एंड यू हैव टेकन फोटो ऑफ इट, इट वुड बी एडेड देयर. फाइन. सो यू गो टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ. सो यू मे राइट, ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हो मैंने फाइल अटैच किया हुआ है. आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो लैंग्वेज आपको परमिटेड होगा. मराठी के लिए शायद एमसीक्यू ही है. इंग्लिश और डिपार्टमेंट्स के लिए शायद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है. सो मराठी पीपल्स विल नॉट वरी अबाउट दिस पार्ट. मराठी डिपार्टमेंट के लोगों को ये करना नहीं होगा क्योंकि उनके शायद एमसीक्यू ही है. सो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. आपका एक टेस्ट भी होने वाला, मॉक टेस्ट. फाइन. सो योर टीचर्स विल टेक केयर ऑफ दैट इन मॉक टेस्ट. फाइन. आपके टीचर उसका केयर कर लेंगे जो आपको जैसे करना होगा वैसे. तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है यहाँ पर भी. I have to type my answers here only. Fine. So let me go to next. So suppose I am asked to only solve 5 questions. I don't want to answer remaining one. अगर मुझे 7 क्वेश्चन दिए गए उसमें से मुझे कोई भी 5 आंसर करने थे, तो मेरा अगर सबमिट होता है, so let me submit this. ठीक है. अगर मैं सबमिट नहीं करता हूं तो let us wait for. अगर मैं सबमिट नहीं करता हूं तो क्या होता है देखो. How much time is remaining? Remaining time is 32 seconds. इतने सेकंड्स बाकी है अभी. नाउ अभी क्या होगा, व्हेन दिस टाइम इज ओवर, ये जब टाइम खत्म होगा तो आपको सबमिट करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा. व्हेन दिस टाइम इज ओवर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्लिक ऑन सबमिट बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट. आप देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है. ये जब टाइम खत्म होगा, देखो इसका कलर चेंज हो रहा है. तो टाइम जब खत्म होगा तो देखिए क्या होता है. व्हेन दिस टाइम इज ओवर, सी दिस स्क्रीन, व्हाट हैपेंस. Now it आपको ऑटोमेटिकली बाहर लेके जाएगा. Fine, it will take you outside. Now you will not be able to see what answers you give. आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा एक्सटर्नल एग्जाम के लिए कि वो आंसर्स क्या लिखे थे आपने, वो दिखेगा ही नहीं आपको. ठीक है. The way that you saw with internals, like
जो जैसे आपने इंटरनल में देखा था, जैसे इफ आई गो विद इंटरनल्स आई एम एबल टू सी व्हाट आई रोट, करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनल के लिए आपने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, व्हाट आर द मार्क्स गिवन टू यू, आपको कितने मार्क्स दिए गए वहां पर दिख रहा है, बट आपको एक्सटर्नल के लिए वो दिखेगा नहीं, ठीक है। You will not be able to see that thing for external examination. Fine? या देखो यहाँ पर you are not permitted to review this. Correct? आपको ये परमिट नहीं किया गया है टीचर साइड से, बिकॉज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का पेपर आपको, आंसर पेपर आपको मिलेगा नहीं। फाइन, इसका रीइवैल्यूएशन भी नहीं है। लेट मी टेल यू, इफ इट इज एमसीक्यू काइंड ऑफ क्विज, वो अगर एमसीक्यू काइंड ऑफ क्विज है, देयर इज नो रीइवैल्यूएशन फॉर एमसीक्यू क्विज। फाइन, एमसीक्यू क्विज के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, मतलब पर्यायी, बहुपर्यायी प्रश्न, उनके लिए आपको रिवैल्यूएशन करने का परमिशन नहीं रहेगा। रिवैल्यूएशन वुड बी परमिटेड ओनली फॉर डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनके लिए ही रिवैल्यूएशन हो सकता है, बट अगेन दैट इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट, दैट पॉलिसी वुड बी डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। उसका जो रिवैल्यूएशन का पॉलिसी होगा, वो रिवैल्यूएशन का पॉलिसी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। So let us not talk about it. उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम फिर से कोर्स को बैक करेंगे। So we'll go to back to our course. Let us go to dashboard. हम डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो जब हमारी एक्टिविटीज कितनी कंप्लीट हुई, यहाँ पर दिखा रहा है 60%. It is showing us that we completed 60%. Why? Because when we are done, we have to mark this. You have to mark this. Fine? आपको ये मार्क करना है, ये बॉक्स आपको दिखेगा only if you will be shown this marks only if आपके टीचर ने उसको इनेबल किया है। if your teacher enabled this, otherwise you will not be able to see this even. Fine? ये आपको दिखेगा भी नहीं कभी, शायद ये परसेंटेज जो भी दिखा रहा है, what are the percentage it is showing here. So when I clicked all of them, यहाँ पर देखिए मैंने सारे टिक कर दिए, तो वहां पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 100% कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं टीचर लॉगिन में। तो आप लोगों को ऐसे इवेल्युएशन आपको एग्जाम देना होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट योर एग्जाम दिस वे। फाइन, ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, इफ आई गो टू Sir, can we upload more than? Hello. Yeah, हाँ, so Can we the upload question more is, than one? हाँ, yeah, I More than understood, I one understood. GPG for same time? Yes, I'm telling that. से आपके आंसर जो है, आप जो आंसर लिख रहे हो, आपके जो जवाब लिख रहे हो आप क्वेश्चन के लिए, इफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर डिस्क्रिप्टिव, फॉर एग्जांपल, अगर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, तो उसके लिए इफ यू आर रिक्वायरिंग, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि वो 2 इमेजेस में जा रहा है, so you can add many images, आप many images ऐड कर सकते हो, provided your teacher permitted it. आपके टीचर ने परमिट किया होगा तो वो हो सकता है। I will show you that part. मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसे होगा। सपोज हम इस पर जाते हैं, एक आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू ओनली फॉर द सेक ऑफ लाइक हाउ एग्जैक्टली इट इज कंट्रोल्ड। सपोज मैं इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था शायद ना, सो इट वाज अ क्वेश्चन नंबर 4 वेयर यू वर एक्सपेक्टेड टू अटैच अ फाइल। फाइन, या सो ये क्वेश्चन था जहां पर आपका अटैचमेंट करना था। सो इन टीचर्स विंडो, when I am a teacher, in teacher window you can see this, how many files I am permitting. So if I say, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही फाइल अटैचमेंट करना है, then it would be one only. Fine. So your teacher can take a call. आपका टीचर डिसाइड कर सकता है कितने फाइल्स करने हैं, तो he can click on this, ये यहाँ पे क्लिक कर सकता है, वहां पर अनलिमिटेड भी बोल सकता है। Fine, it could be unlimited. Now आपके जो अटैचमेंट्स होंगे, दे कैन बी अनलिमिटेड और दे कैन बी वन। वो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या नो भी हो सकता है। जो कुछ सवाल थे, इफ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 1 से, फॉर एग्जांपल, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर अटैच करना नहीं था, करेक्ट। सो इफ आई गो हियर एंड इफ आई एडिट, मैं उसको एडिट करता हूं, तो यू विल सी दैट आई सेड अलो अटैचमेंट्स नो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अटैचमेंट करना जरूरी नहीं है, आपको आपका आंसर यहाँ पे ही लिखना है। So that would be communicated to you by your teachers. आपके टीचर्स आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको आंसर वहां पे लिखना है या आपको अटैच करना है, whether you have to write your answers there or whether you have to attach the files. Have I answered your question? मैंने आंसर किया आपका क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. हेलो, हाँ बोला। हेलो, हाँ बोला।
सर डिस्क्रिप्टिव्ह हॅलो सर, डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न हा, जो बोला. लिहून आम्ही जो पाठवणार आहे तो परत एकदा सांगावा म्हणलं. ओके. हॅलो, आवाज येतो ना? येस 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 येस. सर डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस आम्ही ज्यावेळेस आम्ही लिहून तुम्हाला जे पाठवतो ना. हॅलो हो हॅलो. हो, दाखवतो. हो, ऐकलं हा आवाज. हा दाखवा. मी दाखवतो. फाइन. सो हिज थिंग इज लाइक, कॅन यू रिपीट दॅट डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट? सो लेट मी गो टू माय कोर्स. So I am adding one more sample test here. Okay, मैं एक सैंपल टेस्ट और ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करेंगे. सो दिस इज यूआई, ये मेरा यूआई रहेगा एज एन टीचर. सैंपल डिस्क्रिप्टिव. फाइन. एंड लाइक दिस इज वेयर वी सेट द टाइम. यहाँ पर हम टाइम सेट करते टीचर करके कि ये एग्जाम शुरू होगा इतने बजे. द एग्जाम विल स्टार्ट एट this time, exam will close at, exam close होगा इतने बजे. तो suppose if I say 11, now let me take 59, we'll take more, 12, say 6, fine, and this would be 12:06. now the time duration, आपको टाइम, ये देखो, ये क्या बोलता है, ये ओपन द क्विज एंड क्लोज द क्विज. ये क्या बोलता है कि वो क्विज कब तक अवेलेबल है, बट आपको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम रहेगा, हाउ मच टाइम यू विल गेट टू आंसर योर क्वेश्चंस वुड बी रिटन हियर. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से टोटल टाइम हो गया 16 मिनट्स, करेक्ट. तो दिस वुड बी 16 मिनट्स, बट अमंग देम उसमें से मुझे सिर्फ 10 मिनट मिलने वाले हैं. सो दैट सपोज ये ऐसे होता है कि आप 11:51 को नहीं लॉग इन कर पाए, आप 11:54 को लॉग इन करते हैं सपोज, तो वहां से लेकर 10 मिनट मिलेंगे. लेकिन अगर आप 12 बजे शुरू करते हो, इफ यू स्टार्ट एट 12, then you cannot expect 10 minutes, you will get only 6 minutes because your quiz would be ending at 12:06. आप अगर 12 बजे शुरू करते हो और आपको ऐसे लगता है कि 12:10 को क्विज एंड होगा, नहीं, जो आपको एंड टाइम दिया गया है तभी क्विज हो जाएगा एंड. फाइन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. सो लेट मी से grade 1 and so let me add quiz. Suppose these are the questions added by me, fine, and I am having appropriate marks like this. This exam is, say for example, 65 marks, fine. So let us go back to our student. हम टीचर स्टूडेंट के लॉगिन को जाते हैं. स्टूडेंट का लॉगिन ये है हमारा, हमें वो टेस्ट देखना है जहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर करना है फिर से हमें. फाइन. सो वी हैव टू आंसर दैट टेस्ट वेयर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर. आई एम शोइंग यू वन मोर टाइम, आपको फिर से दिखा रहा हूं मैं एक बार. सो से सैंपल डिस्क्रिप्ट, दिस नेम, ये नेम दिया गया था. यहाँ पर देखो कब तक कब अवेलेबल हुआ, 11:51 को. कब एंड होगा, 12:06 को. टाइम कितना है, 10 मिनट्स. योर एग्जाम स्टार्टेड 11:51, योर एग्जाम विल एंड एट 12:06 एंड टाइम लिमिट फॉर यू वुड बी 10 मिनट्स. तो इफ आई स्टार्ट अटेम्प्ट, मैं अगर अटेम्प्ट को शुरू करता हूँ तो ये मुझे पता है कि हमने जो 4th वाला क्वेश्चन डाला था उसको, sorry, वो अभी रैंडम हो गया. ओके, लेट अस गो टू द क्वेश्चन. सो लेट अस चेक फर्स्ट क्वेश्चन whether is it having no, it doesn't require attachment. If I click on second question, there is no thing. Question number 3, there is no attachment. Question number 5, there is no attachment. Question number 6, yeah, here I have to attach my answer. Fine. Now यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करो. ये पार्ट ऐसे रहेगा कि जहां पर आपको लिख के अटैच करना है. फाइन. सपोज दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू अटैच योर फाइल. सो पे अटेंशन केयरफुली. आप आपका आंसर टाइप करो यहाँ पर. यू स्टार्ट योर टाइपिंग. इफ योर टीचर रिक्वायर्स टाइपिंग आंसर हियर, आपको अगर एक्सपेक्ट कर रहा है टीचर टाइप भी करो, या अदरवाइज टाइप नहीं करना है तो यहाँ पर बोल दो सिर्फ फाइल अटैच्ड. सो इफ योर टीचर डजंट एक्सपेक्ट यू टू टाइप, वहां पर आप लिख दो यू हैव टू राइट दैट फाइल अटैच्ड. आपको ऐसे फाइल अटैच लिखना है. नाउ यू हैव टू गो टू दिस विंडो, यू क्लिक ऑन दिस. आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड को. ठीक है. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऐड, आपको ऐसे आएगा, यू विल गेट दिस इंटरफेस. आपको इस चूज फाइल को क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चूज फाइल. इसको क्लिक करने के बाद यू विल गेट दिस फाइल चॉइस ऑप्शन.
आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये मिलेगा UI, वहां पर आपको फाइल चूज करना है, कौन सा शेयर करना है। सपोज ये PDF डालता हूँ, सपोज मैं, फाइन, सपोज आई एम, ये मुझे सपोज आई एम अटैचिंग दिस आंसर एज एन PDF, सो आई विल से ओपन, मैं उसको बोलूंगा ओपन और बोल दूंगा अपलोड दिस फाइल। तो आफ्टर आई अपलोड, जब मेरा अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर अगर दिखता है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस फाइल, ओके, यू कैन चेक दैट, इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन चेक दैट। आपके विंडो में ऐसे डाउनलोड होगा ब्राउजर में, ओके, आपके डाउनलोड के डायरेक्टरी में, यू इन योर डाउनलोड डायरेक्टरी इट विल बी डाउनलोडेड, एंड इफ यू ओपन दैट फाइल यू विल बी एबल टू सी व्हाट माय आंसर्स वेयर, फाइन। तो सपोज ऐसे आपके आंसर आपको दिखते हैं कि ये मेरा आंसर था, तो आई क्लिक ऑन दिस, मैं इसको क्लोज करता हूं, फाइन। सो आई सॉ, मुझे लगा कि ये मेरा बराबर था, अपडेट करो, ठीक है, और फिर इसको हम करते हैं सबमिट। मैं बाकी आंसर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, फाइन। यहाँ पर मुझे टाइम लेफ्ट दिखेगा, इट विल शो मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इफ आई हैव टू आंसर अदर क्वेश्चंस। अगर मुझे बाकी क्वेश्चंस आंसर करने हैं तो मैं इस रिटर्न टू अटेम्प्ट को क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन दिस रिटर्न टू अटेम्प्ट, फाइन। तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहता हूं अभी। आई वांट टू आंसर नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज अनदर डेमो, ठीक है। सपोज मेरा आंसर यहाँ पर मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया मेरा आंसर। दिस वुड बी पॉसिबल, ये आपको पॉसिबल होगा जब आपके पास लैपटॉप होगा। मोबाइल पर आप टाइप करने में थोड़ा टाइम जाएगा, यू विल बी फेसिंग, प्रोबेबली मे फेस डिफिकल्टी इन टाइपिंग ऑन मोबाइल, फाइन। आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होगा तो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए अगर लगा तो इफ योर टीचर आस्क यू टू राइट आंसर्स देयर, आपको वहां पर लिखने के लिए बोला गया तो यू शुड हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए आपके आंसर लिखने के लिए। मोबाइल में इतना आंसर टाइप करने के लिए टाइम जाएगा, फाइन, ठीक है। तो सपोज like we finished our answer quiz, we will finish this attempt and we will submit it, fine। ऐसे सबमिट होने के बाद मुझे यहाँ पर, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, you cannot change after you submit, so it shows you red, that means you have not answered। ये जब रेड दिखाएगा तो आपको ये बताएगा कि ये आपके क्वेश्चंस को आपने आंसर नहीं किया। These are the only 2 questions that you answer, ये दोनों क्वेश्चन को आपने आंसर किया हुआ है, फाइन। समझ में आ गया अभी कैसे करना है? यस, किसने पूछा था सवाल? हाँ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था। हो सर, कळालाय। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर प्लीज। सेमेस्टरला पण असंच होणार आहे का? तुमच्या डिपार्टमेंटला विचारा, की ते MCQ घेणार आहेत का डिस्क्रिप्टिव्ह? तुमचं डिपार्टमेंट कोणतं आहे? IDSS. IDSS ना, तुमच्या डिपार्टमेंट मध्ये विचारायला पाहिजे। तुमच्या ज्या मल्लिका मॅडम आहेत ना, गड्डा मॅडम, त्यांना विचारा, त्या सांगू शकतील तुम्हाला त्यांची एक्झाम MCQ आहे का डिस्क्रिप्टिव्ह आहे। डिस्क्रिप्टिव्ह असली तर अशी होईल। सो सपोज इफ यू आर फ्रॉम से IDSS डिपार्टमेंट, so your exam would be like conducted either descriptive manner or MCQ manner। MCQ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, बट उसको आंसर वो कौन बता पाएगा? आपका डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। आई ट्राइड कवरिंग ऑल द क्वेश्चन टाइप्स, मैंने पूरे क्वेश्चन टाइप्स कवर करने का ट्राई किया जो आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या MCQ हो सकता है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट म्हणजे मी आता 3rd सेमेस्टर मध्ये आहे, तर 4th सेमेस्टर मध्ये पण असंच होणार आहे का ऑनलाइन एग्जाम? प्रॉबेबली, मैं सांगू शकत नहीं, आई कैनॉट प्रॉमिस, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट इफ यूनिवर्सिटी डिसाइड्स, यूनिवर्सिटी ने अगर डिसाइड किया और या गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया आप लोगों को आने के लिए, सपोज गवर्नमेंट डजंट परमिट यू टू कम टू पुणे, करेक्ट, और टू स्टे इन हॉस्टल्स और विजिट द डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट में नहीं आने दिया जाएगा सपोज कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड, देन आपका शायद पूरा कोर्स वर्क यहाँ पर ही होगा। ऑन मूडल एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, योर एग्जाम्स, योर इंटरनल्स, योर असाइनमेंट्स, आपके असाइनमेंट्स होंगे, ओके, आपके इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे, आपके सैंपल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे, वो सारे यहाँ पर ही होंगे, मूडल पर ही, ठीक है? ओके। हॅलो, हाँ बोला। हॅलो, ऐका ना सर, एक मराठीतून व्हिडिओ तयार करा आणि ते आमच्या शिक्षकांना पाठवा सर, कारण मला ते इंग्लिश अजिबात जमत नाही। यस 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 यस, ऐन टायमाला मला प्रॉब्लेम नकोय परीक्षा देताना। ओके,
नाही नाही, तुम्ही गजानन सरांशी बोलून घ्या, अपिले सरांशी. सर मराठीचा प्रॉब्लेम तोच आहे, काय नाही कळणार तुम्हाला. गजानन सर, काही कळणार नाहीये कारण तुम्ही पूर्णपणे इंग्लिश मधूनच सांगितलं, हिंदीतूनच सांगितलं. आम्हाला कळलं पाहिजे ना सर. हो ते सांगतील तुम्हाला गजानन सर. बरोबर आहे, मराठीत सांगा, मराठीत तुम्ही समजून म्हणजे आम्हाला. मराठीतनं एक व्हिडिओ तयार करा आणि आमच्या हा, अभिनय सरांना सेंड करा. अश्विनी लोंढे बोलताय ना? हो सर. हा हा, आपण बोलू त्याच्यावरती. हा हो हो सर, चालेल. Yes, बरोबर आहे yes. मॅडम सर, कारण मराठी समजेल ना सगळ्यांना. सांगितलं. येस, करेक्ट. हो हो हो. अजून काही प्रश्न? एनी क्वेश्चन? हॅलो सर. हा हॅलो. बोला. सर मोबाईलवर टायपिंग जास्त फास्ट केली जाणार नाही म्हणलं, त्यासाठी काय उपाय, ऑप्शन? नाही, तसं ते तुमच्या पेपर डिपार्टमेंट मध्ये तर विचारायला मोबाईलवर लागेल. द्यावं लागणार आहे. तुमच्या Hello? डिपार्टमेंट मध्ये विचारा, कारण तुमची जर एमसीक्यू असली तर टायपिंगचा काही प्रश्नच नाही, तुम्हाला ऑप्शन चूज करायचा आहे. सपोज युअर एक्झाम इज एमसीक्यू. हॅलो सर. नाही, तुमचा आवाज नाही आला मला. आमचा पेपर हा डिस्क्रिप्टिव्ह होणार आहे. कोणतं डिपार्टमेंट? डिस्क्रिप्टिव्ह होईल म्हणलं पेपर आमचे. कोणतं डिपार्टमेंट? एमसीएस. हा मीडिया. नाही, Hello? तुम्हाला ते अजित सरांची बोला तुम्ही. अजित सर आवाज सांगू येतो का? शकतील. अजित सर सांगू शकतील तुम्हाला प्रॉपरली. ओके सर. हॅलो. हा बोला. सर आता आम्ही काही दिवसापूर्वी मॉक टेस्ट दिली होती एक, आणि त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह उत्तर असं टाईप केलं आणि त्याला फाईल अटॅचमेंट करण्यासाठी फाईल मॅनेजर मध्ये गेलो आणि फाईल अपलोड केली आणि परत आलो तर ते लिहिलेलं पूर्ण क्लिअर झालेलं होतं सर, टाईप केलेलं. नाही, असं नाही व्हायला पाहिजे. तुम्ही मोबाईलवर करत होतात का, ऍप मध्ये करत होतात का? नाही ह्याच्यावर क्रोम वरून. व्हायला नाही पाहिजे असं. मी काय सजेस्ट करेल तुम्हाला, तुम्ही मोबाईल वरून करतायत का लॅपटॉप आहे तुमच्याकडे? नाही, मोबाईल आहे ना, तो दुसरा जो ब्राउझर असेल ना क्रोम शिवायचा, फायरफॉक्स वापरून बघा. एक मॉक टेस्ट तुमच्या डिपार्टमेंटला पुन्हा सांगा एक घ्यायला, म्हणजे तुम्हाला तो व्हेरीफाय करता येईल. ठीक आहे सर. आणि सर इन केस अजून जर काय आपण प्रश्न? डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे लॉग आउट झालो तर आपला टाइम संपून जाईल का परत? तो डिपेंड, तुमचा टायमिंग किती वेळ उरलाय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. अच्छा, म्हणजे आपण लॉग आउट जिथं झालो तिथं टाइम स्टॉप नाही होणार? नाही.